Morning students, today we are talking about the First World War and the Russian Empire. In previous lecture we had discussed about 1905 turbulent time in Russia. पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि रसिया के अंदर जो ब्लडी संडे का इवेंट हुआ था वहाँ पर जो फादर गैपन के द्वारा एक क्राउड को लीड किया जा रहा था जो जार निकोलस सेकेंड से मिलना चाहता था, लेकिन जार की पुलिस ने जो वर्कर्स का जो क्राउड था, प्रोसेसन था, उसके ऊपर गोलियां चलवा दी और काफ़ी सारे लोग घायल हुए और काफ़ी लोग मरे भी उसमें। उस घटना के बाद एक और नई घटना ने जन्म लिया और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, आप सभी को मालूम हुआ कि 1914 में यूरोपियन अलायंसेस में जो यूरोप की बड़ी शक्तियाँ थी, जो पावरफुल कंट्रीज थे, उनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया भी भाग ले रहा था। तो रसिया की क्या स्थिति थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रसिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. ओके, so let me tell you about the real picture of the Russian Revolution and the First World War. As you know that the First World War held in 1914. Okay, this is clear. It was between two powers, Central and Allied. Here it is important to understand that Allied means Mitrarashtra and Central means, this is also called Axis power, Dhuri Rashtra. Austria and Turkey were the country from one side and another side was Britain, France and Russia. These were the allied powers. So First World War took place between two great powers of Europe. These two great powers were fighting against each other. Okay, so it is clear to you all. So here we go and let's start. The First World War in Europe between two powers, Central and Allied. Allied powers means Britain, France and Russia. These countries were the part of Allied powers, that is called Mitrarashtra, and another one was Central powers, that was Austria, Turkey and later Japan also joined during Second World War. But now we are not talking about Second World War, we are talking about First World War. First World War held in 1914 and in 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। ठीक है, तो हम लोग को डिटेल में यहाँ पर बात करना, हम लोग रसिया के बारे में बात कर रहे हैं। रसिया का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, रसिया क्यों भाग ले रहा था, रसिया में उसमें क्या स्थिति थी, क्या सर्कमस्टांसेस थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिजल्ट क्या आया। तो हम लोग आइए बात करते हैं इसके बारे में। ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ये रशियन सोल्जर्स का है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. यू कैन विजुअलाइज दीज पिक्चर्स. द इंपीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज द रशियन स्टीम रोलर. इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड. एट दैट टाइम Russian army was world's largest. You can imagine. When this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries, Tsarist power collapsed. One thing I had not told you in previous classes, Tsarist, what is Tsar? Tsar is a title, Tsar is a name, Tsar is a post. एक्चुअली में रसिया में जो ऑटोक्रेसी था वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि रसिया में राजा का शासन था, ऑटोक्रेटिक रूल था। रसिया के किंग को जार कहा जाता था। पहली बात तो ये, तो निकोलस सेकेंड जो मैं आप लोग को बताता हूँ, निकोलस सेकेंड उसका नाम था, जो किस डायनेस्टी का था? रोमानोव डायनेस्टी का था। जार निकोलस सेकेंड जो था रोमानोव डायनेस्टी का था। जार बोलते वहां के किंग के लिए यूज किया जाने वाला एक, आप कह सकते टाइटल है। ऑटोक्रेटिक रूल था जार, द टर्म यूज्ड फॉर emperor of Russia, and you can say that Zarina, the term used for empress, okay, for female gender. Okay, Nicholas II was the autocratic ruler. He was the emperor of Russia and he belonged to Romanov dynasty. Dynasty means a same family, hereditary rule wherever it exists, you know. So we will talk about the First World War and the situation of Russia at that time. You can see that in this picture, in Russia the war was initially popular and people rallied around
जार निकोलस सेकेंड शुरुआती दिनों में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बिगिनिंग हो रहा था 1914 में, एक्चुअली में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो बिगिनिंग है वो एक्चुअली में इम्पेरियलिज्म का एक फॉर्म था। दरअसल उन दिनों यूरोपियन कंट्रीज में होड़ सी लगी हुई थी, जिस कंट्री के पास जितना कॉलोनी होगा, जिसके पास जितना टेरिटरी होगा, वो उतना ही पावरफुल होगा। इसीलिए वहां पर सभी देश आपस में लड़ रहे थे अपने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करने के लिए। देयर वाज द नीड ऑफ टेरिटोरियल गेन्स एंड expansion of empire through conquest and the war. So that was the main reason. Military exercises were there. So many reasons. We will discuss about those things in later classes. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. वर्ल्ड वॉर के समय में जार निकोलस सेकेंड ने ड्यूमा के जो भी पार्टी थे, जो वहाँ की ड्यूमा जो पार्लियामेंट थी, जिसको उसने बाद में चल करके डिसॉल्व कर दिया था, उससे उसने मिलने से इनकार कर दिया। इसलिए वजह से रसिया का जो आम आदमी था, जो वहाँ का जो सेंटिमेंट था, रशियन सेंटिमेंट, जो वहाँ के लोगों की भावनाएं, वो जार के अगेंस्ट में हो गई थी। इसे जार का सपोर्ट कमजोर पड़ चुका था। और दूसरी बात ये हुई वर्ल्ड वॉर के टाइम में कि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। जर्मनी के अगेंस्ट में जो सेंटिमेंट था वो भी ज़्यादा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया तुर्की के अलावा जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भाग ले रहा था। जर्मनी वाज आल्सो टेकिंग पार्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो द पीपल ऑफ रशिया वर अगेंस्ट जर्मनी एंड जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई among the people of Russia, as it can be seen in the renaming of St. Petersburg as German name. रसिया में एक सिटी का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक जर्मन नाम है, जिसको लोग बदल करके पेट्रोग्राड रखे आगे चल करके। तो ये एक रीज़न ये भी था। जार निकोलस के टाइम पीरियड में ये एक मेन रीज़न रहा है। लोगों का उसके प्रति जो गुस्सा था, जो प्रोटेस्ट था, उसका एक रीज़न ये भी था। दूसरा कारण ये था कि जार की जो स्पाउस थी, वाइफ जरीना अलेक्जेंड्रा, वो भी जर्मन ओरिजिन से बिलोंग करती थी। और उसका जो जार निकोलस सेकेंड का जो एडवाइजर था, जो उसका स्पिरिचुअल गुरु था, उसका नाम क्या था? निकोलस सेकेंड जो था, उसका जो स्पिरिचुअल एडवाइजर था, मतलब सुपरस्टिशियस थिंग्स के लिए स्पिरिचुअल एडवाइजर, उसका नाम क्या था? रासपुटिन। He was the advisor of Nicholas II and Romanov family. You can say that he was the advisor of Nicholas II and Romanov family. Rasputin. Zarina was the spouse of Nicholas II, and the Zarina Alexandra was the spouse of Tsar, especially a monk called Rasputin. As I have already told you about the Rasputin, he was the spiritual advisor, and you can say that advisor of Romanov family and Nicholas II. And in some books, it has been mentioned that Zarina Alexandra was really influenced to the Rasputin. Rasputin had great impression over Alexandra, Zarina Alexandra, the wife of Nicholas II. एक्चुअली में जरीना अलेक्जेंड्रा जो स्पाउस थी, वो एक्चुअली में रास्पुटिन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन उस समय मॉन्क था, एक स्पिरिचुअल एडवाइजर था, जो रोमानो फैमिली का एडवाइस देता था, राजा को, किंग को सलाह देता था, सलाहकार था वो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट differed from that on the western front. In the western front, armies fought from trenches stretched along eastern France. In the east, armies moved a good deal and fought. बता रहा है कि युद्ध जब चल रहा था तो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर जो आर्मी किस तरह से लड़ रही थी, कैजुअलिटीज वगैरह। कैजुअलिटीज मीन्स होता है कि जो मरने वाले की संख्या होती है। बहुत सारे लोग उसमें मरे भी थे, बहुत सारे सोल्जर्स घायल भी हुए थे। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग. Russia's armies lost battle in Germany and Austria between 1914 and 1916. रशियन आर्मी की काफ़ी बुरी हार हुई जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इन दिनों। Actually, there were over 7 million casualties. You can imagine 7 million
लोग मारे गए थे। 1970 तक जो डेथ टॉल था वो 1917 तक चला गया था। तो इससे ये साबित होता है कि निकोलस सेकेंड का जो स्टेप था, उसने जो ये डिसीजन लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो गलत था और रशियन आर्मी को लॉस्ट करना पड़ा। और रशियन पीपल वर वेरी डिसएग्री विद दिस पॉलिसी ऑफ जार एंड हिज डिसीजन वाज नॉट करेक्ट एज दे रिट्रीटेड मीन्स वापस लौट जाना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वापस रशियन आर्मी लौट आई, जबकि वर्ल्ड वॉर का एंड कब हुआ? 1918 में। रशियन आर्मी went back, they bounced back, they retreated in 1917 because their soldiers were died, 7 million casualties were there, so they were very disappointed. That's why they retreated. The Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. और क्या खास बात वहां पर हुई कि रशियन आर्मी ने बहुत सारे फसल को, बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया था, जिससे कि दुश्मन देश का जो भी हमलावर हो, जो अटैक करने वाला हो, उसको वहां पर छुपने की, रहने की जगह नहीं मिल सके। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। इससे क्या हुआ कि रशिया में 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी हो गए, मतलब उनके पास कोई घर नहीं था, वो शरणार्थी हो गए। दे वेर डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू लिव। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। और इस पूरे सिचुएशन के लिए रशियन आर्मी का जो भी डैमेज हुआ या रशियन पीपल का जो भी नुकसान हुआ, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था जार निकोलस सेकेंड, जो वहां पर उस आर्मी का उस समय लीड कर रहा था, क्योंकि वो उस समय वहां का किंग था। तो इस वार से और इस घटना से वहां के लोगों में काफी रोष था, काफी गुस्से में थे लोग, और इससे काफी नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं, दिस वाज वेरी बैड वन। सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। अब जो वहाँ के सैनिक थे, उन्होंने वार करने से, लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री पर, एग्रीकल्चर पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। रशिया के इंडस्ट्रीज बंद हो गए, लोगों का कट ऑफ हो गया, सोशल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स जो थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए। रशिया का मतलब बिल्कुल इकोनॉमी का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। 1960 तक रेलवे लाइन्स वगैरह भी ब्रेक डाउन हो चुके थे, और जो भी लोग थे वहाँ पर, उन सबों ने इसका, युद्ध का काफ़ी विरोध किया। एज ए रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज, यू नो, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल गुड्स दैट वाज आल्सो शट डाउन। मतलब पूरे तरीके से एकदम क्लोज लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर वेरी पुअर, फार्मर्स वेर लिविंग इन पिटिएबल कंडीशन, इंडस्ट्री वाज शट डाउन, एवरीथिंग इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ देयर वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन. So the people of Russia decided to root out, you can say that, to root out the Tsar's rule and Romanov family rule from Russia. लोगों ने फाइनल डिसाइड किया कि रशिया से अब जार निकोलस सेकेंड का जो शासन है उसको खत्म करेंगे, उसको रूट आउट करेंगे, उसको थ्रो आउट करेंगे, और एक नया सिस्टम वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके लिए पहले से ही तैयारी चल रही थी। विंटर 1960 में जाकर के क्या हुआ, जगह जगह पर राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे, और ब्रेड शॉप्स वगैरह में, तो खासतौर पर वहाँ पर भोजन का जो साधन था, खाने की जो वस्तु जहाँ पर मिलती थी, वहाँ पर लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया, और चारों तरफ से विरोध के स्वर उठने लगे थे। तो इस तरीके से रशिया की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाती, वहाँ के सोल्जर्स का जो मनोबल था, उनका जो सेंटीमेंट था, वो भी गिर चुका था, और रशिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। बाकी बात फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।